Finally, guys, a big breaking news is out. As we know that Cognizant just announced the mass hiring. ठीक है, but this is a different one and how to apply because many candidate thinking that this is Gen Z Pro, Gen Z Next. But keep in mind, guys, this is not a Gen Z or Gen Z Pro. This is another opportunity which is absolutely is hiring, which is conducted by Cognizant. But the thing is, the difficulty is much more there is as compared to these hirings. ठीक है, why difficulty is there? Because if you see that यहाँ पे guys package is very high. If the package is high, then they are paying you the high, then they will expect you from the like the intermediate or advanced level of technology. If you are putting Python, then you must know the advanced level of Python. If you are putting Java, then you must know the advanced level of Java. If you are putting AI, then you must at least know the intermediate, or you have to put the 2 or 3 project which is absolutely advanced level, not only basic. Basic will not work here, guys, because if you go to the 6 LPA minimum package, sorry 4 LPA मिनिमम पैकेज ऑफ 5 LP जो भी होता है जेंसी प्रो जेंसी नेक्स्ट का मिनिमम, तो देयर विल बी द बेसिक रेज्यूमे, बेसिक प्रोजेक्ट यू कैन conquer. This is sufficient for to conquer these type of packages. But if you see that what is written there, senior associate 10 LP, and associate means fresher, even fresher getting the 12 LP, then think about this, how you will get to see the this shortlisting plus this offer letter of this company, or how to get the 12 LPA as a fresher. तो गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. दिस इज़ अ लेवल अप अपॉर्चुनिटी. दिस इज़ एब्सोल्युटली एडवांस लेवल ऑफ डोमेन, एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज यू मस्ट हैव इवन एज अ फ्रेशर. वाई? क्योंकि गाइज पैकेज सिंपल सा है कि यहाँ पे एज अ फ्रंटियर इंजीनियर प्रोग्राम इज कंडक्टेड एंड दे ऑलरेडी लॉन्च दिस. नाउ कीप इन माइंड दिस इज अ strategy priority for Cognizant, and your campus is among the first campuses. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. फाइनल लेवल इज डिटरमाइंड थ्रू द असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस. नाउ वी हैव attached the student voucher which set out the skill role and full assessment journey. Now keep in mind, guys, what is the eligibility criteria? 27 batches eligible. BE Tech, ME Tech batch compulsory. 10 12th UG PG, no standing area backlog. But there is filtering. Why? What is filtering? If you have round figuring, now if you have round figuring of 59.9 percentage, you are not eligible, guys. At least 60% is required in academic 10 12th and in like क्या है ये 10 12th UG मतलब graduation में. One provision worth highlighting to your student is team was built in बैक पाथ. ठीक है, ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है. सेलेक्ट, हाँ, कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड इन राउंड 3 interview will be automatically evaluated within the same interview for Cognizant Gency Next programmer analyst role 6.75 LP before their candidature is closed. बात समझे? If you are not selected in round 3 of the interview, means ACE interview, 18 or 12 LP package will be automatically evaluated. They will give you the exact same interview, but the package will be degraded. ठीक है, role will be degraded. What is Gen Z Next Pro? They will give you the opportunity. Even they are not directly rejecting you after not clearing the ACE team round 3. They are giving you the another opportunity. So based on round 2 technical assessment, performance of candidates may also be mapped for a direct Gen Z Next interview at a later stage. अब देखो, हिंदी में बता दूं कि इंग्लिश में तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ. सपोज दिस इज़ अ ACE राउंड 1 and you gave the ace round 1, ठीक है, but you gave the 100%, you cracked the 100% cutoff, so they will give you the exact associate role which is 12 LPA, which is associate level of role, either 12 LPA or either 18 LPA. But somehow your performance is not well, somehow at the mid level of you performed in round 1, so they are not directly rejecting, guys. This is a big opportunity. They are not rejecting you even you are not performing well in round 1. After that they are giving the another opportunity which is Gen Z Next. ठीक है, Gen Z Next means a 6.7 LPA, guys, they are giving you, which is very great opportunity और बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई. बहुत अच्छी बात है ये, कम से कम रिजेक्शन नहीं हो रहा है. तो क्या हो रहा है, इवन इफ़ योर राउंड 1 परफॉर्मेंस इज़ नॉट वेल, दे आर गिविंग यू द Gen Z Next. एंड आफ्टर क्या होगा, सपोज यहाँ पे जो बंदा था जिसने 100% कट ऑफ क्लियर्ड आफ्टर गिविंग द राउंड 1, दे गॉट द एस इंटरव्यू, मीन्स एस इंटरव्यू. But they will again check the ACE interview performance. If ACE interview performance is not well, somehow mid performed you in ACE interview, they will give you the
ऑफर लेटर ऑफ जेंसी नेक्स्ट, ठीक है, समझ गए, ये होने वाला है। मतलब इंटरव्यू की परफॉर्मेंस अगर गिर गई तो जेंसी नेक्स्ट, राउंड वन की एस इंटरव्यू की भी परफॉर्मेंस गिर गई तो भी जेंसी नेक्स्ट, मतलब जेंसी नेक्स्ट का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से निकालना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद कोई डाउनग्रेड नहीं है। तो यहाँ पर समझ आ गई ये बात, तो अब आगे बढ़ेंगे। टू ब्रिंग द टीम ऑफ योर कैंपस यू वुड लाइक टू फॉलोइंग दीज विंडो आर अक्रॉस 27 कैंपस कैलेंडर, ठीक है, एंड वी विल लाइक टू प्लान, ठीक है। So online assessment, communication and aptitude will be there 14th August Friday, and in person technical assessment there will be the coding part, I think guys. There will be the coding part 18 to 26 August, and interview in person at the same day they will conduct 25 to 7 September। मतलब ये है कि अगर जैसा भी होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वंस यू कंफर्म योर डेट विद इन दीज विंडोज यू विल बी फॉलो अप द रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड कॉन्डिटेशन फॉर ईच स्टेज। तो ये बात समझने की थी गाइस कि यहाँ पर डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं है। सपोज कि आई एम अ कैंडिडेट एंड आई गेव द एस राउंड वन, एवरी कैंडिडेट गेव द राउंड वन, विल डेफिनेटली यू विल सी द एस राउंड वन फर्स्ट, ठीक है। फिर उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा कि भाई इसको एस का इंटरव्यू देना है कि इसको जेंसी नेक्स्ट का इंटरव्यू देना है, ठीक है। सबको यहाँ पे कंपलसरी यू हैव टू गिव द राउंड वन विच इज़ एस राउंड वन। आफ्टर दैट योर परफॉर्मेंस विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ एस इंटरव्यू और जेंसी नेक्स्ट इंटरव्यू। तो यहाँ पे अगर जेंसी नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर लो हो गई तो यहाँ डायरेक्ट ऑफर लेटर मुझे रिसीव होगा यहाँ पे जेंसी का, ठीक है। और अगर जेंसी के इंटरव्यू मिल रहा है आफ्टर गिविंग द जेंसी राउंड वन, सॉरी एस राउंड वन, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मेरी लो थी, तो दैट्स वाई दे गिव मी द टेंसी नेक्स्ट। तो अगर यहाँ पे अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आई विल गेट द ऑफर लेटर, इफ़ नॉट दे विल गिव यू द रिजेक्शन, क्योंकि इसके बाद नॉट एनी अदर रोल टू डाउनग्रेड। ये बात समझ आ गई ना, तो पूरी तुमको यहाँ कहानी समझ आ गई गाइस। अब यहाँ पे और रिपीट कर दूँ तो करेंटली हायरिंग इज़ ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस में कम लेटर, एंड 27 बैचेज एलिजिबल, न्यू हायरिंग प्रोग्राम फ्रंटियर इंजीनियर प्रोग्राम, पैकेज बहुत हाई है बट यहाँ एआई के नीचे बात नहीं होगी, एंड देयर इज़ द प्योर डेवलपमेंट दे वांट। बंद करो यहाँ पे, ये चालू करिए। तो सैलरी पैकेज ऑलरेडी टोल्ड यू, एसोसिएट मींस फ्रेशर, सीनियर एसोसिएट मींस एक्सपीरियंस कैंडिडेट 18 एलपीए, मैक्सिमम पैकेज मिनिमम 12 एलपीए। तो भाई मिनिमम 12 एलपी होना बताता है कि भाई लेवल चाहिए भाई, एआई में चाहिए, और ह्यूज इंक्रीज कम्पेयर टू ओल्ड रोल्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दे आर गिविंग द 6.7 एलपीए, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। हायर पैकेज मतलब हायर डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी टोल्ड यू, 27 बैच 60%, नो बैकलॉग। Callback opportunity very important. If you did not clear the final interview, they will give you the Gen C. Even if you did not able to give the 100% performance in round one, क्योंकि तुम यहाँ पर देखोगे राउंड वन ऑनलाइन असेसमेंट है, तो दे विल गिव यू द Gen C नेक्स्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। नाउ एप्टीट्यूड ए आई, देखो एप्टीट्यूड यहाँ पे होगा जो क्वालिफाइंग ओनली एलिमिनेशन राउंड है, और जो टेक्निकल राउंड होगा ना ये भी एलिमिनेशन राउंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड क्या है, डिसाइड योर रोल एंड पैकेज विच इज़ इन पर्सन इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू डेट प्लीज नोट डाउन, एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस डिसाइड एसोसिएट और फॉल बैक सीनियर, ठीक है। तो फोकस मेनली ऑन टेक्निकल प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन आर जस्ट क्वालिफाइंग, पैटर्न इज़ न्यू, डोंट रिलाई ऑन ओल्ड कंटेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे न्यू कंटेंट लाने वाला हूँ मैं, तो डोंट वरी गाइज, वेरी सुन आई विल अटैच द पीडीएफ ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, हम एस लेवल के ही एप्टीट्यूड देखेंगे इस बार, क्योंकि अब लेवल ऊपर हो गया तो बेसिक वाले एप्टीट्यूड करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो बेसिक से ही जाना पड़ेगा। फॉर्मूला यू हैव टू नो अबाउट द एप्टीट्यूड, क्योंकि अगर मान लो इन पर्सन की भी बात की जाए तो आई थिंक वहाँ पे कोडिंग पार्ट बस हो सकता है, पेन पेपर पे भी हो सकता है। बट हाँ, अगर वहाँ पे डायरेक्ट ही कंडक्ट कर दिया जाए तो मे बी यू विल अगेन गेट टू सी द एप्टीट्यूड पार्ट और कोडिंग पार्ट, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। अगर इन पर्सन का ये मतलब है, जो कि अभी क्लियर नहीं है गाइज, हो जाएगा। इन पर्सन का अगर ये मतलब है कि भाई डायरेक्ट तुम्हें फेस टू फेस यहाँ पे पेन पेपर का यूज़ करके कोडिंग सॉल्व करनी है, तो ये एक अलग सिनेरियो, मतलब ये सेम एज इट इज़ आई थिंक टीसीएस से है, आई थिंक, ठीक है। एक बार बता देना, टीसीएस की तरह है ये भी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो इन पर्सन टेक्निकल आई थिंक ये कोडिंग है, जो कि पेन पेपर का यूज़ करके हो सकता है, मोस्ट हाईली चांसेस इज देयर, बट आई विल गिव यू द अपडेट, डोंट वरी। अभी तो हम सिर्फ एक एजम्पशन कर रहे हैं कि भाई हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, इंटरव्यू जो होगा वो प्योर रेज्यूमे बेस्ड होगा, प्योर रेज्यूमे के प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, प्योर कोडिंग पूछी जाएगी, फेस टू फेस यू हैव टू सॉल्व द कोडिंग, एसक्यूएल क्वेरीज यू हैव टू सॉल्व, एंड मोस्टली दे विल डीप डाइव इनटू द एआई पार्ट। तो एआई, एलएलएम, रैग, पाइथन,
pandas libraries, AI libraries, AI framework, AI agents. If you put in resume टू AI agent, AI automation tool, देन यार यहाँ पे सीधा सिलेक्शन होगा। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी हुई ना, थोड़ी सी 19-20 का भी फ़र्क हो गया, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे डाउनग्रेड होगा। डायरेक्ट 12 LP मिल सकता है इफ़ यू आर पुटिंग AI agent, AI automation टू प्रोजेक्ट। So if you're having any query, just comment down. Thanks for watching.